Good morning students, welcome back to my YouTube channel Science Learners. In this video we are going to discuss about the important board questions of chapter Light Reflection and Refraction. So let's discuss first question. First question we have, name the spherical mirror used as shaving mirror. तो हमने बहुत बार कर लिया. Concave mirror, rear view mirror in vehicles, convex mirror, reflector in searchlights, again concave mirror. Write any three differences between a real and virtual images. So real image, it can be taken on the screen. Virtual cannot taken on screen. Real image always inverted. Virtual image always erect. Real image, it when reflected or a refracted rays actually meet at a point, then real image is formed. Or virtual image, when reflected or refracted rays appear to meet at point, then virtual image is formed. Next question, what is the power of a lens? Give its SI unit. When two or more lenses are placed in contact, what will be their combined power? The power of lens is that ability of lens to converge or diverge a ray of light incident on it. आप इसी तरह से इसकी डेफिनेशन लर्न करोगे क्योंकि हमारी NCERT में ऐसे ही दी हुई है. तो I just repeat, power of lens is the ability of the lens to converge or diverge a ray of light incident on it. मीन्स उस ऑब्वियसली जो हम लेंस यूज़ करते हैं उसकी पावर यही होती है कि उसको वो कन्वर्ज और डाइवर्ज कर दे अकॉर्डिंग टू जो हमने उसको देखना है किसी ऑब्जेक्ट को. तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस दैट P इज़ इक्वल टू 1/f. ऐसा यूनिट होती है इसकी डायप्टर, कैपिटल D से डिनोट करते हैं अगर जो फोकल लेंथ है वो हम मीटर में मेज़र करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, for the same angle of incidence in media P, Q and R, the angle of refractions are 45 degree, 35 degree and 15 degree respectively. In which medium will the velocity of light be minimum? Give reason. उसको सॉल्व करके देखते हैं. तो फॉर्मूला हमारा ये होता है, साइन मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, साइन ऑफ एंगल आई ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालनी है, तो वी विल यूज़ दिस रिलेशन. फॉर सेम इंसिडेंट एंगल वी विल बी मिनिमम फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, दैट इज़ मीडियम आर. अगर इंसिडेंट एंगल सेम है तो जो वैल्यू होगी हमारी मीन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो एंगल जिसकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा उसके लिए होगी. तो ये हो गया हमारा मीडियम आर के लिए साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन कम है 15 डिग्री, तो आर में सबसे कम वेलोसिटी होगी. नेक्स्ट वी हैव डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ मीडियम ए एंड बी आर NA and NB respectively. What is the refractive index of medium B with respect to medium A? How does the velocity of light vary with the change in the optical density of the medium? So what is absolute? It is a index of a given medium with respect to air or vacuum is known as absolute refractive index of medium. ये भी आप as it is इसको learn करोगे. इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ये हमने काफ़ी बार कर चुके हैं हम लोग. अगर ये ग्रेटर देन 1 है देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक होता है कि अगर दो मीडियम दिए हों तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए, दैट इज V of VB over VA इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B. So higher the optical density, lesser will be the velocity of light in the medium. ये लाइन भी आपको याद रखनी होगी. As the velocity of light increases, the refractive index of the medium decreases. Light enters from air to water having refractive index 4/3. Find the speed of the light in water. Speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second. जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, बार बार यही रिपीट होते हैं. नए कहाँ से लेके आएंगे, NCERT की बुक तो सेम ही है. तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करना है. आई एम श्योर यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100. तो लेट्स सी दिस न्यूमेरिकल. जैसे कि हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो हम निकाल लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन विद ये फॉर्मूला लगेगा हमारा. सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड.
ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये आई थिंक ये एक्सरसाइज में दिया होगा, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, हाउ इज इट रिलेटेड टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या है? इट इज़ अ रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट एंड इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। फोकल लेंथ से ये कैसे रिलेटेड है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, मीन्स आर इज इक्वल टू 2f। With the help of ray diagram, show that angle of incidence is equal to angle of reflection when a ray of incident on concave or convex mirror. तो this is the first diagram of with of concave mirror. तो आप देख सकते हैं पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देन इट पासिस फ्रॉम द फोकस। अब जब सेंटर से पास करेंगे तो इट शोज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम भी एग्जाम में आई थी ये। और विद कॉन्वेक्स मिरर यू सी पहले फोकस की रे दिखाई हुई है, देन सेंटर से पास की हुई दिखाई हुई है। सेम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ से क्लियर होगा। ये दोनों क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/, मीन्स पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे हमें फोकल लेंथ पता करनी है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p, 1/1.5 m, इट गोज 10/15, आंसर गॉट 2/3 पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ आई हमारी 66.7 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ है, इसका मतलब कि कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। With the help of ray diagram, show that the formation of image of an object by a concave mirror when it is placed in the center of at the center of curvature। तो रे डायग्राम देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो हमने दो रूल्स लगाए हैं। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग फ्रॉम फोकस। सेकंड रूल लगाया है कि इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सेंटर के नीचे ही दोनों रेस मीट कर गई, सेम साइज इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म्ड रियल। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ द फॉर द इमेज फॉर्म बाय कंकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपको रे डायग्राम्स आनी चाहिए। बियॉन्ड द सेंटर हमने रखा, सेम दो लगाए हमने, दैट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग फ्रॉम फोकस। एंड अनदर रूल हमने इसमें लगाया है इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम सेंटर, और सेंटर में से ही वापस आएगा, तो ये बिटवीन सेंटर और फोकस में मीट कर जाएगी। डिमिनिश्ड साइज की इन्वर्टेड रियल इमेज बनेगी। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग विद सरफेस। रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसमें दोनों इक्वल नहीं होते। रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस फ्रॉम एनी सरफेस, रिफ्लेक्शन में दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होने ज़रूरी है। नेक्स्ट डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट टुवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ concave lens। तो मिड पॉइंट ऑफ लेंस through which a ray of light passes undeviated is known as optical center। A straight line joining two center of curvature is known as principal axis of lens। तो ये हमारी डायग्राम है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर जिसमें से लाइट पास कर रही है। An object is placed at the focus of lens, draw a ray diagram to locate the position of the image formed, if any, state its position and nature। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। लेट्स सी द डायग्राम। दिस इज द डायग्राम। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग फ्रॉम फोकस, देन ऑप्टिकल सेंटर में से सेम। तो ये हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म मैग्निफिकेशन, राइट इट्स फॉर्मूला। Magnification m of a mirror gives the relative extent to which the size of image of object is magnified with respect to the size of object।
इट इज़ ऑल्सो द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और m इज़ इक्वल टू -v/u। न्यूमेरिकली हम इसको यूज़ करते हैं ज़्यादा। राइट द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो इट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। With the help of ray diagram, differentiate between the converging lens and diverging lens. So this is the diagram for the convex means diverging lens. तो आप देख सकते हैं कि रेस कहाँ पे मीट कर रही है। कन्वर्जिंग लेंस इट इज़, देन अनदर वी हैव डाइवर्जिंग लेंस। तो ये सारी डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एनसीईआरटी की। नेक्स्ट वी हैव, इफ द इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट placed in front of it, it always erect diminished. What type of mirror is it? Drawable diagram. So it is a convex mirror, ray diagram for any position of object. So this will be the ray diagram. State the laws of refraction of light, explain the term absolute refractive index of a medium, and write an expression to relate it with the speed of light in vacuum. Laws of refraction. First is incident ray, refracted ray normal to the point of incidence all lie in the same plane as it is for reflection. The ratio of sine of incident angle to the sine of angle refraction of given pair of medium is constant. Absolute refractive index of medium is the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in medium. It will be equal to speed of light in air to the speed of light in medium. तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस को नोट डाउन ज़रूर कीजिए, आंसर्स नोट डाउन मत कीजिए। प्लीज़ क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि पेपर्स में कैसे आते हैं।